So ladies and gentlemen, boys and girls, in the last class we discussed here about the use of want and wanted. In the last class we discussed here about the use of want and wanted. So before we start the class, I would like to recall all previous classes. Means we want to do practice. So shall we start practice? By all means speak. By all means. Loudly. By all means. By all means. मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ. I want to speak English. Again. I want to speak English. I wanna speak English. I want to speak English. Loudly. I want to speak English. मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ. I want to celebrate. Again. I want to celebrate. मजा नहीं आया. I want to celebrate. मैं लिखना चाहता हूँ. I want to write. बोलिए. I want to write. मैं जाना चाहता हूँ. I want to go. अगेन. I want to go. क्या आप जाना चाहते हैं? Do you want to go? बोलिए. Do you want to go? लाउडली. Do you want to go? बोलिए. Do you want to go? मैं नहीं जाना चाहता. I don't want to go. बोलिए. I don't want to go. मजा नहीं आया. I don't want to go. I don't wanna go. I don't want to go. Speak everyone. I don't want to go. लेकिन But मैं जाना चाहता था. I wanted to go. बोलिए. I wanted to go. I wanted to go. I wanted to go. मजा नहीं आया. I wanted to go. मैं लिखना चाहता था. I wanted to write. बोलिए. I wanted to write. मैं सेलिब्रेट करना चाहता था. I wanted to celebrate. लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है. I haven't time. बोलिए. I haven't time. I haven't time. I haven't time. इसलिए. That's why. लाउडली बोलिए. That's why. बोलिए. That's why. चिल्लाइए मत. Don't shout. डोंट शाउट. Don't shout. अगेन. Don't shout. लाउडली. Don't shout. लेकिन मेरे पिताजी चिल्लाते हैं. My father shouting. माई फादर शाउट्स. बोलिए. My father shouts. अगेन. My father shouts. लेकिन मेरा भाई गाली देता है. My brother abuses. अब्यूसिस. बोलिए. My brother abuses. अगेन. My brother abuses. इसलिए That's why. क्या मुझे जाना चाहिए? Should I go? लाउडली. Should I go? मजा नहीं आया. Should I go? लाउडली. Should I go? अगेन. Should I go? क्या मुझे लिखना चाहिए? Should I write? अगेन. Should I write? लेकिन वो भूल गया. He forgot. He forgot. He forgot. अगेन. He forgot. अगेन. He forgot. क्या आप भुलक्कड़ हैं? Are you forgetful? आर यू फॉरगेटफुल? Are you forgetful? मजा नहीं आया. Are you forgetful? मजा नहीं आया. Are you forgetful? लाउडली. Are you forgetful? अगेन. Are you forgetful? मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ. I'm not forgetful. अगेन. I'm not forgetful. लेकिन मेरा भाई भुलक्कड़ है. My brother is forgetful. इसलिए That's why आपको आना चाहिए. you should come. अगेन. You should come. क्या मुझे आना चाहिए? Should I come? अगेन. Should I come? आपको लिखना चाहिए. Should I write? यू शुड राइट. बोलिए. You should write. अगेन. You should write. मैं लिखना चाहता हूँ. I wanna write. अगेन. I wanna write. आई वांट राइट. I wanna write. अगेन. I wanna write. मेरा भाई लिखना चाहता है. My brother wants to write. माई ब्रदर वॉन्ट्स टू. Write. अगेन. My brother wants to write. लेकिन मैं लिखना चाहता था. I wanted to write. अगेन. I wanted to write. मेरा भाई लिखना चाहता था. My brother wants to write. माई ब्रदर वॉन्टेड टू राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट योर लास्ट क्लास. डन? एनी डाउट? एनी क्वेश्चन? Okay, so now ladies and gentlemen, boys and girls, I'm going to start your new concept. So shall we start? By all means. Okay, suppose that, what's your good name? Yeah. Talha. 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 Okay, Talha got recently married. अब तला की नई नई शादी हुई है और शादी के बहाने इन्होंने कुछ छुट्टियां ली हुई है. छुट्टी लेने के बाद आज बहुत अच्छा माहौल है, वेदर जो ब्यूटीफुल है. तो तलहा ने अपनी वाइफ से और तलहा ने खुद ने डिसाइड किया चलिए ऊपर चलते हैं, कुछ चाय का आनंद लेते हुए वेदर का एंजॉय करेंगे. तो तलहा और तलहा की वाइफ छत पर जाते हैं और आनंद ले रहे हैं एक ब्यूटीफुल वेदर का. अब ब्यूटीफुल तो हर वेदर लगेगा ही तलहा को, क्योंकि ब्यूटीफुल पार्टनर जो साथ में है.
हाथ में चाय का प्याला और ब्यूटीफुल, जालियां लगा दे, पता चला गिरी जाए नीचे। विदाउट इसके भी तो दिक्कत हो जाएगी ना, गिर गए तो फिर कौन उठाएगा। अभी तो नई नई शादी हुई है, आनंद चल रहा है। अब शादी के इस माहौल में, शादी के नहीं सॉरी, एक ब्यूटीफुल माहौल में दोनों आपस में बातें चल रही है, डिस्कशन हो रहे हैं। तला बता रहे हैं देखिए ये शर्मा जी का हाउस है, ये वर्मा जी का, ये चौधरी साहब का है। अच्छा, वो जो रहते हैं ना चौधरी साहब, उनका घर है। तो ये भाई साहब आते हैं, उनकी फैक्ट्री है। तला की वाइफ करें वेरी गुड, क्लासमेट है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई नहीं। अब ये ऐसी डिस्कशन चलते हैं। अब इसी दौरान हैपन भी होते हैं। और आपको पता है जब कोई नई चीज़ें हों उनके सामने ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जैसे नई बाइक ले ले, वो लगती ज़्यादा है, ऐसे ही नई वाइफ के सामने कुछ हरकतें भी ऐसी ज़्यादा हो जाती हैं। अब इसी दौरान क्या हुआ कि जो बगल है वहाँ पर रहते हैं चौधरी साहब, और चौधरी साहब के 3 लड़के हैं, तीनों दिल्ली पुलिस में हैं। और आज चौधरी साहब का सुबह शाम एक ही काम होता है, गाली की बारिश करना। गली में कोई अगर हल्का सा भी कुछ कर दे तो चौधरी साहब लड़कों पर उछलते हैं, बैक है उनके पास। अब चौधरी साहब लग गए गाली देने, अब्यूज़ करने, गली में अब्यूज़ कर रहे हैं। कुछ देर के बाद तला की वाइफ की नजर, सॉरी वाइफ तो इधर है, सॉरी नजरें जाती है चौधरी साहब पर। एक बार चौधरी साहब को देखती है, एक बार तला को देखती है, एक बार चौधरी साहब को देखती है, और एक बार इस तरीके से हो रहा है। अब तला की वाइफ ने कहा कुछ कहो, कुछ कहो। हाउ टू से बेटा, कुछ कहो, से समथिंग। क्या बोलते हैं? से समथिंग। तो तला की वाइफ ने कहा से समथिंग, से समथिंग, इस तरीके से कहा से समथिंग। तो तला ने हल्की से आवाज में कहा कहना तो चाहता हूं लेकिन कह नहीं सकता। मीन्स बोलना तो चाहता हूं लेकिन बोल नहीं सकता। तो मुझे बताएंगे चौधरी साहब, आप बताइए, बोलना तो चाहता हूं लेकिन बोल नहीं सकता। आई कुडंट, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। आज आप बताइए। I want to speak, but I can't. Absolutely. Clapping for him. Very good. Excellent. Don't forget. Okay. तो उन्होंने कहा कहना तो चाहता हूं बट नहीं कह सकता। I wanna और एक्शन बट I can't. अब ऐसी बात सुनकर तला की वाइफ को गुस्सा आ गया। और गुस्सा आना बताएंगे, क्या बताएंगे बेटा? गुस्सा आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल गुस्सा आना? एंग्री। गुस्सा आ गया मुझे। हाँ जी, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए बेटा। एब्सोल्युटली राइट। शी हैज गोटन एंग्री। क्या बोलेंगे? लाउडली, शी हैज गोटन एंग्री। उसे गुस्सा आ गया। अब गुस्सा जब आ गया तो तला से पूछा मजबूरी क्या आपकी? क्यों नहीं बोल रहे आप? मजबूरी क्या है आपकी? क्यों सहन कर रहे हैं ऐसी बदतमीजी गली में खड़े होकर? बदतमीजी, मजबूरी। हम रोजाना सुबह से शाम तक मजबूरी की बहुत बात करते हैं। पता है तला को मजबूरी क्या है? 3 लड़के हैं, अभी तो बोल दूंगा बाद में मारेंगे, तो मजबूरी है। लेकिन वाइफ ने पूछा आपकी मजबूरी क्या है? आप इस सेंटेंस को सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी बार बोलते हैं। डू यू स्पीक और नॉट? डू यू स्पीक और नॉट? डू यू स्पीक और नॉट? भी बोलते हैं। अब मजबूरी क्यों क्या कहते हैं? मजबूरी होती है कंडीशन, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपल्शन। क्या बोलते हैं? सुना ही नहीं दिया? लाउडली। और जब आप किसी से कहें आपकी मजबूरी क्या है, अगर आप कभी किसी से बोलें भाई साहब आपकी मजबूरी क्या है, तो उसे इंग्लिश में बोलना व्हाट्स योर
कंपल्शन। जब भी आप कभी किसी से कहे कि आपकी मजबूरी क्या है तो क्या बोलोगे? मजा नहीं आया? व्हाट्स योर कंपल्शन? अगेन, आपकी मजबूरी क्या है? क्या बोलोगे? अब ये तो हो गई आपकी मजबूरी क्या है। अगर मैं बोलूं आपके पिताजी की मजबूरी क्या है? फादर नहीं, फादर्स कंपल्शन। फादर्स कंपल्शन। जब हम कहेंगे आपके पिताजी की मजबूरी क्या है, व्हाट्स योर फादर्स कंपल्शन। आपके पिताजी की मजबूरी क्या है तो क्या बोलोगे? मजा नहीं आया? लाउडली, व्हाट्स योर फादर्स कंपल्शन? अगेन, आप बहुत बार बताते हो मेरी मजबूरी ये है, मेरी मजबूरी वो है, मेरी मजबूरी ये है। बोलते नहीं बोलते? डू यू स्पीक और नॉट? जब हम कहते हैं मेरी मजबूरी, जो भी चीज करना आपकी मजबूरी हो उसे सबसे पहले लिख दीजिए एक्शन। अब प्रॉब्लम ये होती है, याद रखना, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्शन से स्टार्ट करते हैं, एक्शन मतलब वर्ब से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आईएनजी लगाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि नॉन एक्शन बनाना होता है। ओके? अब जैसे मैंने कहा, लिखना राइटिंग, बोलना स्पीकिंग, जॉब करना डूइंग जॉब, चलना वॉकिंग, देखना लुकिंग, इस तरीके से। जैसे मैंने कहा बोलना मेरी मजबूरी है, स्पीकिंग इज माई कंपल्शन। मीन्स बोलना मेरी मजबूरी है, तो क्या बोलोगे? मजा नहीं आया? जॉब करना मेरी मजबूरी है, लिखना मेरी मजबूरी है, आना मेरी मजबूरी है। सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? लाउडली, जॉब करना मेरी मजबूरी है, इंग्लिश बोलना मेरी मजबूरी है, स्पीकिंग इंग्लिश इज माई कंपल्शन। जैसे सुबह जल्दी उठना मेरी मजबूरी है, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बोलिए, इज माई कंपल्शन। तो लाइफ में जो भी मजबूरी हो तो उसे बोल दीजिए ये मेरी मजबूरी है। हम पहले भी बोलते थे, इसे एक पुराना तरीका भी है, कुछ लोग अगर ऐसा कहे तो भी ठीक है, ऐसे मत समझना कि ये ऐसे ही बोला जाता है। एक पुराना तरीका भी ऐसे बोलना, इट्स माई कंपल्सन टू और एक्शन। ये भी बिल्कुल राइट है, ये पुराना तरीका है, ये भी बिल्कुल राइट है। इट्स माई कंपल्सन टू गो देयर, या गोइंग देयर इज माई कंपल्शन, बोथ आर द सेम, बट वी आर फैशनेबल, वी लव फैशन, सो वी आर गोइंग टू अकॉर्डिंग टू टाइम, वी मूव विद टाइम। हम समय के साथ चलते हैं, मूव विद टाइम। कुछ लोग टाइम बोलते हैं, टाइम नहीं होता। गाँव में बिल्कुल ठीक है, आप अगर किसी भी गांव में जाते हैं, मोस्टली उत्तर प्रदेश में टैम बोलते हैं, तो देखिए उनकी वो एक तरह के आप कह सकते हैं मदर टंग बन चुका है। अगर उन्हें बताएंगे ना टाइम होता है, वो कहेंगे ज़्यादा अंग्रेज मत बन, दे आर ओके। तो हमें किसी को बदलना नहीं है, हमें खुद को बदलना है, बिकॉज हमसे समाज स्टार्ट होता है, समाज से हम स्टार्ट नहीं होते, हमसे समाज स्टार्ट होता है। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, समाज किससे स्टार्ट होता है? हमसे, ना कि समाज से हम स्टार्ट होते हैं। हम जैसा समाज बनाते हैं वैसे ही समाज आगे बढ़ता है। नो इश्यू। ओके, तो अब हमने कहा, तो इसलिए अच्छा समाज बनाने के लिए खुद अच्छे बनिए, दूसरों को अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गाली दे रहा तो लेट हिम, आप उससे प्यार से बोलिए, कोई नहीं भाई साहब दीजिए, और अच्छा बात है, कोई नहीं, क्योंकि वो आपके मैनर्स को देख के खुद ही चुप हो जाएगा। अगर आप भी गाली देंगे, वो भी गाली दे रहा है, तो और गाली के भरमार बारिश पड़ेगी, और जब बारिश होगी तो कोई और भी देगा। समझ रहे ना आप? तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना।
अगर कोई चुगली करता है तो आप कहिए बहुत अच्छी बात है, करते रहिए और आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, वो चुगली करना बंद कर देगा। लेकिन अगर वो चुगली कर रहा है आप भी करने लगोगे तो बारिश करने लगेगा। मैं आपको रियलिटी बताऊं, पीछे हमारा एसी का काम होना था, एसी का काम हो रहा था पीछे, एसी लगवाया था, गरीब से इंसान है तो एक एसी लगवाया। बच्चों को, हमें गर्मी लगी है लेकिन बच्चों को नहीं लगनी चाहिए ना, अब एसी तो एसी होता है। और वो पीछे लगवाया तो पीछे बहुत अच्छा मकान है, एक बहुत बड़ी कोठी सी बनाई हुई है। तो गलती तो हमारी भी थी कि वो जो एसी वाला था वो इस तरीके से एसी लगा रहा था कि हवा डायरेक्ट जाएगी। अब ओनर का लड़का था, वो भी कोठी में रहते हैं भैया, 5-6 मकान है तो वो भी गर्म खून है, पैसा आता है, हम उनके किराएदार है ना, रेंट पे रहते हैं। तो उन्हें गुस्सा है रेंट वालों के सामने, हमें क्या, वो लड़ने लगे आपस में ऐसे जैसे कैट फाइट होती ना, इस तरीके से एक दूसरे को। तो मैं पहुंचा तो मैंने सिंपल सा कहा, मैंने कहा आप चुप रही। मैंने उन आंटी से कहा, उन्होंने कहा गली को बुला लो। मैंने कहा आंटी एक बात बताइए। आंटी कहा, मैंने एज थी, मैंने कहा आप पढ़े लिखे लगते हैं, मुझे अच्छी फैमिली से लगते हैं, तो बातें प्यार से भी हो सकती है, चिल्ला लीजिए, मैं सुन लूँगा, आप चिल्लाते रहिए, लेकिन एक बात बताइए, इससे आपके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आज आप हम पे चिल्ला रहे हैं, कल वो आप पे चिल्लाएंगे। वो चुप हो गई और चली गई। उसने फिर कहा बेटा मैंने इनसे कहा ऐसे कर लूँ। मगर कोई नहीं, एसी मेरा, ओनर ये है, आप भी ओनर हो हमारे, हम ऐसे लगवा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चीज़ें कभी कभी सोल आउट होती हैं स्लोली, लेकिन हो जाती है। लड़ने से क्या फ़ायदा है, या आपसे लड़के हमें फ़ायदा, हमारा नुकसान हो जाए तो वो लगने नहीं देते फिर। तो हमें तो दोनों तरफ की देखनी थी ना, हमारा लग भी जाए और भाई लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो वो उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, एक तीर से 2 शिकार। गलती से निकल के बताना तो पड़ेगा। चलिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू किल 2 birds विद सिंगल स्टोन। एक तीर से 2 शिकार, 2 निशाने, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उनकी वाहवाही भी हो गई, उन्होंने मान भी लिया हाँ ये पढ़े लिखे हैं, और हमारा एसी का भी काम हो गया। अब मैं लड़ता, एसी भी ना लगता और इंसल्ट होती, तो फ़ायदा क्या इस बात में। क्लास भी थी। तो इसे बोलते हैं टू किल 2 birds, बोलिए विथ सिंगल स्टोन, बोलिए अपना काम भी निकाल लिया, वाहवाही भी लूट ली। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने कहा, जैसे मैंने बोला कि लिखना मेरी मजबूरी है, तो राइटिंग इज माई कंपल्शन, बोलिए अगेन। चलिए आपके पिताजी की मजबूरी क्या है, बोलिए मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। जॉब करना मेरे पिताजी की मजबूरी है, माई फादर्स कंपल्शन, बोलिए डूइंग जॉब इज माई फादर्स कंपल्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया मजबूरी। अब मजबूरी से एक वर्ड बना मजबूर करना, मजबूर करना। अब ये तो एक एक्शन है, एक वर्क है। अब मजबूर करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली राइट, मजबूर करने को बोलते हैं कंपेल। कंपेल क्या बोलते हैं? कंपेल। बोलिए लाउडली, बोलिए कंपेल। कंपेल का मतलब मजबूर करना, ये एक एक्शन है, मीन्स वर्ब है। अब कोई भी चीज अगर एक्शन होती है, वर्ब होती है, तो आपको पता है कि किसी भी एक्शन की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी और एस या ईएस। इसी प्रकार कंपेल की भी 5 फॉर्म होती है। आज उसका यूज करना कैसे किया जाता है, कैसे कैसे करते हैं, उसका यूज करना सीखेंगे और इससे और सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करेंगे। पहला, हाँ वो भी बताएंगे। ओके ठीक है, डोंट टेक द बेनिफिट ऑफ माई कंपल्सन, सिंपल था, बताएंगे। ओके अब आगे बढ़ते हैं। तो कंपेल होता है कंपेल, कंपेल्ड, कंपेल्ड।
कंपल्सन, कंपेल्स और कंपेलिंग, ये आपकी 5 फॉर्म्स अवेलेबल होती है कंपेल की। तो पहली फॉर्म कंपेल, कंपेल्ड, कंपेल्ड, कंपेल्स और कंपेलिंग, ये आपकी 5 फॉर्म्स अवेलेबल है कंपेल की। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए अब इनका यूज कैसे किया जाता है। सबसे सिंपल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले हम रोजाना अपनी लाइफ में एक सेंटेंस बोलते हैं, मजबूर मत कर मुझे। आपकी मम्मी कहती है, आपकी वाइफ कहती है, आपके हस्बैंड, मजबूर मत करो। ये तो बहुत बार बोला होगा, सुना होगा आपने, मजबूर मत करो। तो उसे बोलेंगे डोंट कंपेल मी। क्या बोलोगे? मजा नहीं आया? मेरे पापा को मजबूर मत करो, मेरे भाई को मजबूर मत करो, राम को मजबूर मत करो, उन्हें मजबूर मत करो। बोलिए, स्टूडेंट्स को मजबूर मत करो, गवर्नमेंट को मजबूर मत करो। तो किसी को मजबूर करना डोंट, अगर आप कहना चाहते मत करो, डोंट कंपेल। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। अब मैंने कहा, अब कोई आपको मजबूर क्यों करता है? किसी काम के लिए। जैसे यार मुझे मजबूर मत कर, गाली देने के लिए गाली दूंगा नहीं तुझे बहुत सारी, मुझे लड़ने के लिए मजबूर मत करो, मुझे बर्तन धोने के लिए मजबूर मत करो, मुझे लिखने के लिए मजबूर मत करो, मुझे आने के लिए, जाने के लिए, बोलने के लिए, हंसने के लिए, बैठने के लिए, सेलिब्रेट पार्टी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए मजबूर मत करो। अगर आप कभी किसी से कहते हैं मुझे मजबूर मत करो उसके लिए, तो बोलेंगे डोंट कंपेल मी टू और एक्शन। जैसे आपने कहा कि मुझे जाने के लिए मजबूर मत करो, तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मजा नहीं आया? लाउडली। मुझे आने के लिए मजबूर मत करो। अगेन, मेरे पिताजी को जाने के लिए मजबूर मत करो। टू गो, डोंट कंपेल माई फादर टू गो। जैसे मैंने कहा उन्हें मजबूर मत करो लड़ने के लिए, डोंट कंपेल देम टू फाइट। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बहुत बार कहते हैं यार क्या बताऊं, बता क्या बताऊं, मेरी मम्मी ना मुझे मजबूर करती है खाना बनाने के लिए, मेरे पापा मुझे मजबूर करते पढ़ने के लिए, मेरा भाई मुझे मजबूर करता है, मीन्स वह मजबूर करता है। तो बोलेंगे ही कंपेल्स मी टू और एक्शन। अब यहां पर ही के प्लेस पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम में से कोई भी लगा सकते हैं, मम्मी भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने, आप कहते हैं मेरी मम्मी मुझे बर्तन धोने के लिए मजबूर करती है, आई डोंट वॉन्ट टू डू डिशेज, लेकिन करना पड़ता है, मम्मी मजबूर करती है। तो इन्होंने कहा माई मदर कंपेल्स मी, बोलिए, My mother compels me टू डू डिशेज, टू डू डिशेज। डू डिशेज का मतलब होता है बर्तन धोना। ओके, आगे डिश वॉश तो बेटा वो बर्तन धोने वाला होता है। अच्छा, हमने तो, चलिए कोई नहीं, इट्स ओके, ओके, कोई नहीं, वो थोड़े से भाग जाते हैं वो शादी में भाग जाते हैं चलिए कोई नहीं, इट्स ओके। चलिए, तो मैंने कहा मेरे पिताजी मुझे इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर करते हैं, तो क्या बोलेंगे? Absolutely right. My father compels me to speak English. बोलिए। चलिए, कभी कभी आप एक सेंटेंस बोलते हैं, देख तू मुझे मजबूर कर रहा है बोलने के लिए, तू मुझे मजबूर कर रहा है। ऐसे बहुत बार कहते हो आप मुझे मजबूर कर रहे हो, देख लो आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। You are compelling me to action. आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। जैसे आपने कहा आप मुझे गाली देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, देख लो
तो यू आर कंपेलिंग मी टू अब्यूज, बोलिए You are compelling me to abuse. आप मुझे जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। You are compelling me to go. अगेन You are compelling me to go. अगेन You are compelling me to go. आप मुझे लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। You are compelling me to fight. टू फाइट। आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, किसी ने गाली दी किसी को, तो अब घर पे आ गया, भाई तुम्हारे लड़के ने गाली दी, अंकल जी तुमने मुझे मजबूर किया था गाली देने के लिए, मैं नहीं देना चाहता था, आई डिडंट वांट अब्यूज, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया इसलिए गाली दी मैंने। आपने मुझे मजबूर किया, और मजबूर किया, यू एब्सोल्युटली राइट, इंटेलिजेंट हो गए आप सब। कंपेल्ड मी टू और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इतनी उम्मीद नहीं थी कि 15 दिन में आप इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे। चलिए कोई नहीं, इंटेलिजेंसी तो आपकी चमकती रहती है। तो बोलते हैं यू कंपेल्ड मी टू अब्यूज, बोलिए You compelled me to abuse. अगेन। You compelled me to abuse. आपके भाई ने मुझे गाली देने के लिए मजबूर किया, Your brother compelled me to abuse. अगेन। Your brother compelled me to abuse. मेरे बॉस ने मुझे जाने के लिए मजबूर किया, My boss compelled me to go. अगेन My boss compelled me to go. अगेन। My boss compelled me to go. डन। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया किया, लेकिन कभी कभी कहते हैं मैं करूँगा, वो तुझे मजबूर करेगा, वो तुझे मजबूर करेगा, मैं तुझे मजबूर करूँगा। और आपको पता है फ्यूचर में हम बस विल का यूज़ करते हैं लैंग्वेज के तौर पर। मैं करूँगा, वो करेगा, वो करेगी, सबके साथ विल आएगा। कहते हैं ना, देखो तुझे मजबूर करेंगे, ध्यान तो रखना, ध्यान रखियो, वो तुझे मजबूर करेंगे, वो तुझे मजबूर करेंगे, दे विल, एब्सोल्युटली राइट, दे विल कंपेल यू टू और एक्शन। जैसे मैंने कहा वो तुझे जाने के लिए मजबूर करेंगे, दे विल कंपेल यू टू गो, बोलिए They will compel you to go. कभी कभी क्या होता है, जैसे आप दोस्तों में पार्टी में जाते हो, अब दोस्तों में पार्टी हो और ब्लैक डॉग ना हो, थोड़ा सा मनाली हो, पता नहीं लोग क्यों जाते हैं मनाली। मैं आपको बी फ्रैंकली बताऊं, आज तक जब भी मैं कहीं घूमने गया हूं, मैंने कभी ये काम नहीं, वैसे तो मैं करता ही नहीं, लेकिन कभी नहीं सोचा, क्योंकि हम घूमने गए हैं, एंजॉय करने गए हैं, ठंड में बर्फ़ थोड़ी जमाने गए हैं। लोग पोस्ट डालते हैं, दिखाते हैं, लेकिन गलत है, ये चीज़ें गलत है। कोई दुर्घटना हो जाए, सोचो घर पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं कोई आंगन बिछा कर, है नहीं, नजरें बिछा कर, तो सोचो क्या हुआ, हाथ की चूड़ी तोड़नी पड़ जाएगी। ये भी तो हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सांप काट ले, कोई और काट ले, किसी दुर्घटना में आ जाओ, ट्रक आ जाए, नशे में कुछ ना पता चले, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। चलिए आगे बढ़े, चलिए ऐसा ना हो, हम तो ये गए, आगे आपकी मर्जी। तो कहते ना, जा तो रहा था उसके साथ, लेकिन तुझे मजबूर करेंगे पीने के लिए, ध्यान रखना। तो बोलेंगे दे विल कंपेल यू, बोलिए They will compel you टू ड्रिंक, to drink. बोलिए They will compel you to drink. वो तुझे पीने के लिए मजबूर करेंगे, ड्रिंक करने के लिए मजबूर, कंज्यूम लिकर के लिए मजबूर करेंगे। चलिए कभी कभी क्या होता है कि किसी के घर में कोई बच्चा नहीं पढ़ता, तो उसका दोस्त कहता है यार अपने भाई को मजबूर कर पढ़ने के लिए, यार कहा करना उसे, तू कहता ही नहीं कुछ भी, यार तुझे करना चाहिए, आपको अपने भाई को मजबूर करना चाहिए, करना चाहिए, यू शुड, यू शुड कंपेल योर ब्रदर टू और एक्शन। जैसे आपने कहा कि आपको अपने भाई को मजबूर करना चाहिए पढ़ने के लिए, तो यू शुड कंपेल योर ब्रदर टू स्टडी, बोलिए You should compel your brother to study. आपको स्टूडेंट्स को मजबूर करना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, You should compel the students to study. टू स्पीक इंग्लिश। आपको स्टूडेंट्स को टाइम पर आने के लिए मजबूर करना चाहिए, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। अब आपने मुझे एडवाइस दी, तो मैं कहूँगा यार मैं करना तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ करना, तो मैं करना चाहता हूँ, आई वाना कंपेल, आई वाना कंपेल स्टूडेंट्स टू एक्शन। मैं स्टूडेंट्स को मजबूर करना चाहता हूँ समय पे आने के लिए, तो बोले आई वाना कंपेल स्टूडेंट्स I want to compel students टू कम ऑन टाइम, to
लाउडली बोलिए, to come on time. So this is the use of compel. I use in different way. Understood everyone? Yes, sir. Understood? Yes, sir. So next use. कभी कभी आप एक वर्ड यूज करते हैं, मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ, आई कांट डू नथिंग यार, मैं मजबूर हूँ, सॉरी यार मैं नहीं कर सकता कुछ, मैं मजबूर हूँ। तो जब आप किसी से कहें मैं मजबूर हूँ तो बोलना आई एम हेल्प लेस या कंपेल्ड। इसका मतलब होता है कि मैं मजबूर हूं, आई एम हेल्पलेस, आई एम कंपेल्ड, डोंट टेक द बेनिफिट ऑफ माई कंपल्सन। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, आई एम कंपेल्ड। अंडरस्टूड? तो दिस इज द चैप्टर ऑफ कंपल्शन. I explain you in a different way that how you can use in a different sentences with the other of all sentence. So this is the portion of compulsion. If you are having any doubt, you can ask me. Yeah, you can ask. लास्ट वाला जो आपने बताया they will compel you to action. इसमें जैसे वो maybe वाला वो चीज होती है अगर We can use may. They may compel you. शायद और शायद ही, might, शायद ही, might. Understood everyone? Done? You can write down.